السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز اور میں ہوں احسن رضا۔ ابتدا ہے رب کریم کے نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اے اللہ، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین۔ اور سب سے پہلے بات کریں گے موسم کی، تو شہر قائد میں مونسون کی انٹری ہو گئی۔ گرد آلود تیز ہوائیں اور مٹی کا طوفان شروع ہوا۔ محکمہ موسمیات نے بارش برسانے والا سسٹم آج شام تک شہر میں داخل ہونے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ شہر قائد کا موسم بھی تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے بعد بوندا باندی شروع ہو گئی، جس سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ بلوچستان میں بارش اور آندھی کا سبب بن رہا ہے۔ کراچی کے شمالی اور غربی علاقوں میں 40 سے 44 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرد آلود ہوائیں چل رہی ہیں۔ ضلع غربی کے علاقے سرجانی، گلشنہ معمار، احسن آباد میں مٹی کا طوفان، جبکہ سپر ہائی وے کے مختلف علاقوں میں گرد ہوائیں چل رہی ہیں، اور گلستان جوہر میں تیز ہوائیں۔ نارتھ کراچی، ایم اے جنا روڈ، صدر گرو مندر، سولجر بازار اور گلشن اقبال میں بوندا باندی ہوئی۔ اس سے قبل ہب میں مٹی کا شدید طوفان آیا، جہاں گرد آلود ہوائیں چلنے سے لوگ شدید پریشان ہوئے۔ بیلا، اوتھل، وندر اور ہب میں مٹی کے طوفان کے بعد کہیں کہیں ہلکی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں آج سے 8 جولائی تک مونسون بارشوں کی پیشگوئی کر رکھی ہے۔ کراچی شہر میں برساتی نالے صفائی کے منتظر کام تاحال شروع نہ ہو سکا۔ بارشوں سے شہر میں اربن فلڈ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی مونسون خوب برسے گا اور شہر جل تھل ہونے کا امکان ہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے بارشوں کے پانی کو سمندر برد کرنے والے نالوں کی صفائی کا تاحال کام شروع نہ کیا جا سکا۔ شہر کے دیگر نالوں کی طرح شاہ فیصل کالونی کے نالے میں کچرے کا انبار جمع ہے، جہاں سے سیوریج کا پانی ہی مشکل سے نکل رہا ہے، تو بارشوں کا پانی کیسے گزرے گا؟ شہری انتظامیہ ہو یا سندھ حکومت، دونوں ہی شہر کے نالوں کو صاف کرنے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ انتظامیہ کی غیر سنجیدگی اور نااہلی کا خمیازہ عوام کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ شاہد اجاز، سچ ٹی وی، کراچی۔ کراچی میں مونسون کی دستک، فکس اٹ مہم سے شہرت کما کر تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ایم این اے بننے والے عالمگیر خان اپنے مخصوص انداز سے جلوہ گر ہو گئے۔ نالوں کی صفائی مہم چلانے کے بہانے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی تصویر گجر نالے پر لگا دی۔ کیا فکس اٹ کا مقصد سیاسی مخالفین کا مذاق بنانا ہے؟ کراچی میں کچرا صفائی کے نام پر فکس اٹ مہم کا آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کی تصویر گٹر کے ڈھکن پر لگا کر شہرت پائی۔ کراچی صفائی مہم کے دوران کچرا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے دروازے پر پھینکا۔ تحریک انصاف کو انداز پسند آیا، کراچی سے ایم این اے منتخب کروا دیا۔ عالمگیر خان کے اپنے حلقے این اے 243 میں کچرے اور گندے پانی کا بسیرا ہے۔ مونسون کی پہلی بارش کے ساتھ ہی عالمگیر خان سندھ حکومت کے خلاف نکل آئے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی تصویر گجر نالے پر لگا دی۔ نہ شخصیت کا احترام، نہ عہدے کا لحاظ۔ کراچی میں فکس اٹ کی مہم عالمگیر خان کراچی والوں کے لیے چلاتے ہیں یا سیاسی قد بڑھانے کے لیے؟ ایم این اے بننے کے بعد ان کا اپنا حلقہ اب تک صفائی سے محروم ہے اور یہ وزیر اعلیٰ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ عالمگیر خان کو سوچنا ہوگا، اگر ان کے مخالفین ان کی تصویریں اور قداور بینرز کچرا کنڈیوں، گندے نالوں اور گٹر کے ڈھکنوں پر لگائیں گے تو کیا یہ سب برداشت کر پائیں گے؟ سیاسی اخلاقیات کا جنازہ نکالتے ہوئے عالمگیر خان کو یہ بھی سوچنا ہوگا، سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔
بارش اللہ کی رحمت، انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے لاہوریوں کے لیے زحمت بن گئی۔ شہر کے 200 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ بجلی کی طویل بندش میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لاہور میں بارش کے ساتھ ہی مختلف علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی۔ 200 فیڈرز ٹرپ کرنے سے بجلی کا تعطل برقرار ہے۔ کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی بجلی بحال نہ ہوئی۔ شہری کہتے ہیں کہ قدرت تو مہربان ہوئی، لیکن بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے خوبصورت موسم کا سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ نہ جانے حکومت عوامی مسائل پر کب توجہ دے گی۔ ملک بھر میں مونسون کا آغاز ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں بارشوں سے موسم خوشگوار ہوا تو کورونا لاک ڈاؤن میں لوڈ شیڈنگ اور گرمی کے ستائے عوام کے چہرے کھل اٹھے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ مزید 2 دن جاری رہنے کا امکان ہے۔ مانسون بارشوں کی جھڑی لگ گئی۔ لاہور، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات نے بیشتر علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی نوید سنا دی۔ مسائل کا شکار عوام پر قدرت مہربان۔ مختلف شہروں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے موسم سہانا ہو گیا۔ باغوں کے شہر لاہور میں بارش کے بعد سرمئی بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ ٹھنڈی ہواؤں نے موسم کو اور بھی حسین بنا دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مزید بارش ہوگی۔ اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کراچی سمیت ساحلی علاقوں میں تیز ہواؤں سے بارش کی توقع ہے۔ جنت نظیر وادی کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسیں گے۔ جموں میں درجہ حرارت 39، سری نگر میں 31 رہے گا۔ کورونا لاک ڈاؤن میں گرمی اور لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کے پسینے نکال دیے۔ گھر میں لوڈ شیڈنگ اور گرمی نے بحال اور باہر کورونا نے پریشان کر رکھا ہے۔ لوڈ شیڈنگ سے کاروبار بھی متاثر ہونے لگے۔ بجلی کی مسلسل بندش سے عوام آرام کے رہے، نہ کام کاج کے، گھر میں سکون میسر، نہ باہر چین نصیب۔ بدترین لوڈ شیڈنگ نے عوام کی چیخیں نکلوا دی۔ پنجاب سمیت ملک بھر میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف شہروں میں 8 سے 10 گھنٹے جبکہ دیہاتوں میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 16 گھنٹے تک پہنچ چکا ہے۔ بعض شہروں میں شہریوں کو بجلی لوڈ شیڈنگ کے باعث پانی کی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کراچی میں کی الیکٹرک کے بوسیدہ ترسیلی نظام کی وجہ سے شدید گرمی میں روزانہ 10 سے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ معمول بن چکی ہے۔ شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پانی کا بحران الگ سے شدت اختیار کر گیا ہے۔ طویل لوڈ شیڈنگ کے ستائے عوام کے ذہنوں میں ایک ہی سوال ہے، مرمت کے نام پر آج کتنے گھنٹے بجلی جائے گی؟ دورانیہ بڑھانے سے شہری اذیت میں مبتلا ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ اپوزیشن لیڈر صوبائی اسمبلی فردوس شمیم نقوی کی کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر سندھ حکومت پر شدید تنقید۔ بولے کراچی والے سستی بجلی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کی اجارہ داری کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ادارے کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ کمپنی کے معاملات درست نہیں ہیں۔ کراچی کے لوگ ان کے اس رویے سے تنگ آ چکے ہیں اور وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس کراچی کے بجلی کے نظام کے لیے کوئی اور راہیں سوچنی ہیں۔ وہ شہر جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو پاکستان کے ٹیکس میں سب سے زیادہ ٹیکس جمع کر کے دیتا ہے، یہ شہر ہے جدھر 58% ٹیکس جمع ہوتا ہے، 30% ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے، اس شہر میں بجلی کے نظام کا یہ حال ہو 21ویں صدی کے اندر، یہ نامنظور ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ کراچی میں ایک دوسری کمپنی لائی جائے مقابلے پہ کے الیکٹرک کے۔ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری سانے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی JIT کی رپورٹ منظر عام پر آ گئی، جس میں واضح کہا گیا ہے کہ 2012 میں بلدیہ فیکٹری کا واقعہ حادثہ نہیں، دہشت گردی تھا۔ 27 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ سندھ حکومت آج باقاعدہ جاری کرے گی۔ JIT رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں آگ 20 کروڑ روپے بھتہ نہ دینے پر لگائی گئی تھی۔ فیکٹری سے بھتہ MKM کے حماد صدیقی اور رحمان بھولا نے مانگا تھا۔ واقعے کے مقدمے اور تحقیقات میں ملزمان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ دہشت گردانہ کارروائی کو FIR میں پہلے قتل کہا گیا، پھر حادثہ قرار دے دیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات میں FIR یا تفتیش میں کہیں بھتے کا ذکر نہیں کیا گیا،
JIT ने गुज़िश्ता FIR वापस लेने और दहशत गर्दी के दफात के तहत नया मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने FIR में रहमान भोला, हमाद सिद्दीकी, जुबैर चिरिया और दीगर अफराद के नाम डालने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में मुकदमे के मफरूर मुल्जिमान को बैरून मुल्क से वापस लाने, तमाम मुल्जिमान के पासपोर्ट मंसूख करने और नाम ECL में डालने की भी सिफारिश की गई है। JIT रिपोर्ट में वाक़े के तनाजुर में पुलिस के किरदार पर भी कड़ी तनकीद करते हुए कहा गया है कि पुलिस हाई प्रोफाइल वाक़े की दुरुस्त सम्त में तहकीकात में नाकाम हुई। और अब बात महंगाई की, तो महंगाई का सुनामी आम आदमी की कुव्वत खरीद बहा कर ले गया। तब्दीली सरकार के एक साल की कारकर्दगी में महंगाई में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। आम आदमी पर एक साल में क्या गुजरी, इदारे शुमारियात ने एक साल की रिपोर्ट जारी कर दी। कप्तान नए और पुराने तजर्बाकार खिलाड़ियों की टीम बनाकर मैदान में उतरा तो लगा सब कुछ तब्दील हो जाएगा। एक नया खुशहाल पाकिस्तान शहरियों का मुकद्दर होगा। शहरी इस शराब के पीछे भाग पड़े तो अंदाजा हुआ कप्तान की टीम ने बुरी कारकर्दगी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बेरोजगारी, गिरती मईशत और मुल्की कर्जों में बेइंतहा इजाफा, हर मैदान में विकटें गिरती ही नजर आ रही हैं। मौजूदा हुकूमत के नए पाकिस्तान में आम आदमी को सबसे ज्यादा महंगाई ने रगड़ा दिया है। एक के बाद एक उभरते बहरान ने जखीरा अंदोज और मुनाफाखोर माफिया को बेलगाम कर रखा है। इदारे शुमारियात की जारी करदा रिपोर्ट में एक साल के दौरान महंगाई का जिन काबू से बाहर हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2019 से जुलाई 2020 के दौरान अशिया खुरनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा हुआ। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साल के दौरान चीनी 8 रुपए 79 पैसे फी किलो महंगी हुई, जिससे इसकी कीमत 72.03 रुपए से बढ़कर 80.82 रुपए फी किलो हो गई। जुलाई 2019 से जुलाई 2020 में टमाटर 27 रुपए किलो महंगा हुआ। इसी अरसे में सुर्ख मिर्च 109 रुपए, मुर्गी 39 रुपए किलो महंगी हुई। इसके अलावा दाल मूंग 92, दाल माश 68, दाल मसूर 34, दाल चना 10 रुपए फी किलो महंगी हुई। जुलाई 2019 से जुलाई 2020 में चावल 6 रुपए फी किलो महंगा हुआ। छोटा गोश्त 80 रुपए और बड़े गोश्त की कीमत में 41 रुपए इजाफा हुआ। एक साल में आलू 26 रुपए, लहसुन 3 रुपए फी किलो महंगा हुआ। दूध 7 रुपए लीटर, खुश्क दूध 390 ग्राम 46 रुपए महंगा हुआ। दस्तावेज के मुताबिक घी 50 रुपए फी किलो, चाय 190 ग्राम 19 रुपए, दही 5 रुपए और केले की कीमत में फी दर्जन 3 रुपए का इजाफा देखा गया। 30 जून को खत्म होने वाले माली साल में औसत महंगाई 10.74% रही। माली साल 2018 और 19 में औसत महंगाई की शरह 6.80% थी। किसी को नहीं छोड़ूंगा का नारा लगाकर मसनद इक़्तिदार पर विराजमान होने वाले कप्तान और इसकी टीम के हाथों गरीब और मुतवस्सित तबके का पुरसाने हाल नहीं। हर वक्त माफिया की गर्दान करने वाले माफिया की आगोश और अवाम एक शराब के पीछे नामालूम मंजिल की तरफ भाग रहे हैं। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। शहरी कहते हैं कि हुकूमत अशिया खुरनोश, सब्जियों और फलों की कीमतें कंट्रोल करे। बंदा जो है ना अपना रोजगार कर रहे 600-800 रुपए दिहाड़ी कमाता है, तो वो 1200-1400 रुपए वाला बोरी कहाँ खरीद सकता है 20 किलो का। तो फ्रूट भी ऐसा है, गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। 500 कमाते और 1100-1200 का हो गए। फ्रूट भी महंगा हो गया, सब्जी भी महंगा हो गए। हम गरीब लोग क्या करेंगे? आटे के लिहाज से बात की जाए तो वो 1200 रुपए का तोड़ा था, अब जो है इससे भी ऊपर हो गया है, 200 रुपये महंगा हो गया है। तो हम हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे कि इनको कीमतों में थोड़ा कमी पैदा करें। सिर्फ आटा और घी का नहीं है, जो हमारी रोज़मर्रा की जितनी भी अशियाएँ ज़रूरत की हैं सारी की सारी महंगी हो चुकी हैं, जो हमारी पहुंच से काफ़ी दूर हो चुकी हैं। इनकम इतनी है नहीं, अखराजात डबल ट्रिपल हो चुके हैं। तो हमारी तो हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस पर कुछ न कुछ नज़रसानी की जाए। लाहौर में आटे की कीमतों में इजाफे के बायस नान भाइयों ने रोटी और नान की कीमतें बढ़ा दी। शहर में नान 15 और रोटी 8 रुपए में फरोख्त की जा रही है। इस पर रिपोर्ट करेंगे वकार हुसैन। शहर भर के तंदूरों में आटे की कीमतों में इजाफे की वजह से नान 15 और रोटी 8 रुपए में फरोख्त की जा रही है। नान भाइयों का कहना है कि फ्लोर मिल्स ने आटे की कीमत बढ़ा दी है और हम पुरानी कीमत पर नान और रोटी फरोख्त नहीं कर सकते। परेशान हाल खरीदारों का कहना था कि यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं, जब जो चाहता है अशिया की कीमतें बढ़ा देता है। उन्होंने कीमतें बढ़ा दी है तो सीधी सी बात है, उससे नान महंगा ही बेचना है और हमने खरीदना है, मजबूरी है, रोटी तो खानी है। शहरियों का कहना था कि कोई सुनने वाला नहीं, सब कुछ महंगा है और मजीद महंगाई बढ़ती जा रही है। अब रोटी भी महंगी हो गई। यही कुछ हो रहा है। हुकूमत तो माशाल्लाह
जो कुछ कर रही है वो सबको नज़र ही आ रहा है। तो अब रोटी के भी लाले पड़ के आहिस्ता आहिस्ता। लॉकडाउन की सूरत हाल, बिजनेस आगे नहीं है, कारोबार लोगों का, तो कोई रिलीफ नहीं है आवाम को जो मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मावने खुसूसी उस्मान डार का कहना था कि आटे की कीमतें नीचे लाई जा रही हैं और नान रोटी की कीमतों में इजाफा बिला जवाज है। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो खुद साख्ता महंगाई इलाके की सतह पे शहरों में यूनियन काउंसिल्स में की जा रही है, उसको हम सख्ती के साथ क्या कहते हैं आड़े हाथों लें इन लोगों को। तंदूर मालकान का कहना है कि हुकूमत आटे की कीमतों को पुरानी सतह पर लाएगी तो हम नान रोटी का रेट नहीं बढ़ाएंगे। हमारे अखराजात बढ़ रहे हैं, कीमतों में इजाफा अब नागुज़ीर हो गया है। तंदूरों पर रोटी और नान खरीदने वालों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो आटे की कीमतों में कमी करे ताकि उन्हें रोटी और नान सस्ता मिल सके। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। लाहौर के बासियों ने नान और रोटी की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं कि कैसी तब्दीली है कि एक के बाद एक बहरान सर उठा रहा है। तो बिल्कुल नहीं है, बाहर भी हैं लेकिन 405 रुपए का तोड़ा था, अब 520 रुपए का प्राइवेट जो है, इनके वाला आटा जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तरफी महंगाई है, आटा और चीनी का बहुत बहरान है। और चीनी जो है वो 90 रुपये 85-90 रुपये मिल रही है और आटा यूटिलिटी स्टोर पर अवेलेबल नहीं है और बाहर है तो वो महंगा है। और चीज़ें जड़ियाँ हर चीज़ महंगी हो रही है, गोश्त तो महंगा, हर चीज़ महंगी, गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता। 1020 रुपए का आज आटे का थैला लेके आए, कसम खुदा की 200 रुपए थैला मंगाई, इतनी महंगाई हो गई, क्या सी तब्दीली आई। आटा तो सामने पे कितना महंगा उन्होंने कर दिता है जी, बाकी सारी चीजें कोई चीज ऐसी नहीं है जी सस्ती हुई है। नान 15 रुपए का है, हम अगर नान 5 रुपए का बिके ना हम खुशहाल हैं, हम 15 रुपए का नान बेच के बिल्कुल नहीं खुशहाल है। LNG स्कैंडल में साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी के शरीक मुल्जिम शाहिदुल इस्लाम के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। एहतसाब अदालत ने मुल्जिम को इश्तिहारी करार देते हुए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म भी सुना दिया है। असलम कुकर रिपोर्ट करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ LNG स्कैंडल में नया मोड़, मुल्ज़मान की जायदाद जब्तगी का मरहला आन पहुंचा। नैब का इश्तिहारी मुल्जिम शाहिदुल इस्लाम की जायदाद जब्तगी की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। तफसीलात के मुताबिक नायब तफ्तीशी अफसर मलिक जुबैर ने एहतसाब अदालत में अपना बयान कलमबंद करवाते हुए कहा कि मुल्जिम शाहिदुल इस्लाम जानबूझकर रूपोश हो चुका है। मुल्जिम को इश्तिहार के जरिए भी अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक आगाह किया। एहतसाब अदालत ने नायब तफ्तीशी अफसर के बयान की रोशनी में साबिक MDPSO को इश्तिहारी करार देते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, जबकि नादरा को शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने का हुक्म सुना दिया। नायब सराय का कहना है कि मुल्जिम शाहिदुल इस्लाम की जायदाद जब्ती की कार्रवाई के लिए ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 88 के तहत जल्द अदालत से रुजू किया जाएगा। मुल्जिम शाहिदुल इस्लाम पर LNG टर्मिनल के ठेकों की मंजूरियां देने का इल्जाम है। मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस का खौफ या फिर मुलाजमत की बेयकीनी, पंजाब के टीचिंग अस्पतालों से 48 डॉक्टरों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। महकमे सेहत ने मंजूर भी कर लिया। यंग डॉक्टर्स कहते हैं कि महकमे और वजीर सेहत के नारवा रवैये की वजह से इस्तीफा दिया है। इजलाल हैदर रिपोर्ट करेंगे। पंजाब के सरकारी अस्पतालों के 48 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। म्यू अस्पताल लाहौर से 14 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है। अलाइड अस्पताल से 2, DG खान से 4, सिविल अस्पताल बहावलपुर और शेख जैद से 2, जिना अस्पताल से 7 डॉक्टरों ने मुलाजमत छोड़ी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने इस्तीफा मंजूर करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्तीफा देने वाले डॉक्टरों में ज्यादा तादाद मुस्तकिल न होने वालों की है। डॉक्टरों के इस्तीफे पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के सदर डॉक्टर सलमान हसीब कहते हैं, इस्तीफे की वजह MTI एक्ट और कोरोना से बचाव के हिफाजती सामान की कमी है। सरकारी अस्पतालों से 48 डॉक्टर ने इस्तीफे जमा करवा दिए हैं। ये डॉक्टर्स की तरफ से हुकूमत पंजाब की तरफ अदम एतमाद है। हम ये समझते हैं कि MTI का कानून पास कराने से डॉक्टरों की मुलाजमत से जो गैर यकीनी सूरत हाल हुई है उससे लोग हुकूमत पंजाब से मुतमईन नहीं हैं और सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर्स पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, US जा रहे हैं, आयरलैंड जा रहे हैं। डॉक्टर्स कहते हैं ऐसी ही बेयकीनी की सूरत हाल रही तो मजीद डॉक्टर्स भी चले जाएंगे तो फिर हुकूमत खुद अस्पताल के इंतजाम चलाएगी। इलाल हैदर, सच न्यूज़, लाहौर।
پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے ڈاکٹرز کے استعفے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سیکرٹری جنرل ڈاکٹر کیسر سجاد کہتے ہیں جو ڈاکٹرز مستعفی ہوئے ہیں ان سے فوری بات کی جائے۔ حکومت کو چاہیے کہ ڈاکٹرز کے ساتھ مذاکرات کرے تاکہ مریض متاثر نہ ہوں اور مسائل فوری حل ہوں۔ کورونا وائرس سے کئی ڈاکٹرز انتقال کر گئے۔ حکومت نے اعلانات کیے ہیں مگر عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ ڈاکٹروں کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے فوری طور پہ یہ معاملات ہیں ان کو درست کرنا چاہیے، اور میں گزارش کروں گا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کہ وہ ایک اچھا رویہ ایک گڈ گورننس کے طور پہ ان ڈاکٹروں کے ساتھ مذاکرات کریں، معاملے کو حل کریں۔ آلریڈی ہزاروں ڈاکٹرز جو ہیں وہ کورونا میں مبتلا ہو کے اپنے گھروں میں آئسولیشن میں ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف بھی اسی طرح سے بیمار ہو کے آئسولیشن میں ہے۔ اس وقت تقریباً 66 ڈاکٹرز جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں، اور ان کی فیملی کے لیے اب تک حکومت نے خالی اعلان کیا ہے، پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ان حالات میں جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں، صرف یہ کہنا کہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہمارے فرنٹ لائن سولجرز کو ہم ان کو ان کے کام کو سراہتے ہیں، ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں، یہ ناکافی ہے۔ میرے خیال میں نہ سلوٹ کیا جائے، نہ خراج تحسین پیش کیا جائے، ان کے کام کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ ملک بھر میں کورونا کے وار جاری ہیں، اس بات لاک ڈاؤن بھی بے اثر ہو گیا۔ 24 گھنٹے میں مزید 3191 کیس رپورٹ ہوئے، 93 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ وطن عزیز پر کورونا کے سائے متاثرین کی تعداد 2,28,474 ہو گئی۔ 4,752 جان سے گئے۔ 24 گھنٹوں میں 3,191 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں، 93 افراد رقم اجل بن گئے ہیں۔ NCOC کے مطابق اب تک 13,98,352 افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کورونا کے 467 مریض وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ ملک بھر میں اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز کی تعداد 1,562 ہے۔ سندھ میں کورونا سے اموات کی تعداد 1,501 ہو گئی ہے، جبکہ پنجاب میں کورونا سے اموات کی تعداد 1,871 ہے۔ خیبر پختونخوا میں کورونا سے اموات کی تعداد 1,020 ہے۔ اسلام آباد میں کورونا سے اموات کی تعداد 134 ہو گئی ہے۔ بلوچستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 123 ہو گئی ہے۔ گلگت بلتستان میں کورونا کی وجہ سے 28 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ آزاد کشمیر میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 35 ہو گئی ہے۔ ملک میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 1,29,830 ہو چکی ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ کی کاوشیں رنگ لانے لگیں۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے باعث کورونا کے کیسز میں کمی آنے لگی، صحت یابی کا تناسب بھی بڑھنے لگا ہے۔ سجاد قاسمی رپورٹ کریں گے۔ عالمی وبا کو قابو کرنے کے حربے کارگر ثابت ہونے لگے۔ مسلسل 4 ہفتے کورونا کیسز اور اموات کی نت نئے ریکارڈ بنتے رہے۔ ضلع انتظامیہ نے زیادہ کیسز رپورٹ کرنے والے علاقوں کو سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت سیل کرنا شروع کیا، جس سے روزانہ سامنے آنے والے کیسز میں واضح کمی آنے لگی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں سامنے آنے والے کیسز گزشتہ روز محض 97 رپورٹ ہوئے۔ نئے کیسز آنے کے بعد اسلام آباد میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 13,292 ہو گئی۔ گزشتہ روز ایک ہی دن میں 201 مریض صحتیاب ہونے کے بعد اب تک 9,159 مریض کورونا کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز 2,327 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ 4,035 مریض کورونا سے نبرد آزما ہیں۔ سجاد قاسمی، سچ نیوز، اسلام آباد۔ کورونا وائرس کے تناظر میں غلط اطلاعات کے پھیلاؤ پر اقوام متحدہ بھی پریشان ہے۔ افواہوں کا پھیلاؤ روکنے کی اپیل کر دی، سلسلہ نہ رکنے پر ایکشن لینے کا اندیا بھی دے دیا۔ کورونا وبا سے زیادہ غلط افواہوں کا پھیلاؤ، اقوام متحدہ نے کیا ہے تشویش کا اظہار۔ کورونا وائرس کے تناظر میں غلط اطلاعات اور افواہوں کے نہ رکنے کا سلسلہ جاری ہے۔ افواہوں کے بے ہنگم پھیلاؤ پر اقوام متحدہ نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی سطح پر پھیلاؤ روکنے کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غلط اطلاعات کورونا وبا سے زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہیں اور عوامی صحت کی کاوشوں میں خلل اور سائنسی رہنمائی کو مسخ کر رہی ہیں۔ اقوام متحدہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم سب غلط اطلاعات کے پھیلاؤ کے خلاف بھرپور ایکشن لے سکتے ہیں۔ کوئی بھی اطلاع کسی دوسرے تک پہنچانے سے پہلے تصدیق ضروری ہے اور یہ بھی جاننا لازم ہے کہ اطلاع کہاں سے آئی، ذرائع کیا ہیں۔ اقوام متحدہ نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ تصدیق کریں کہ اطلاع کب شائع ہوئی، آپ کیوں شیئر کر رہے ہیں۔ مظفر گڑھ میں شادی کی تقریب میں کورونا SOPs کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ وائرس کے پھیلاؤ کے باوجود احکامات کی خلاف ورزی پر دلہا سمیت 8 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ حکومت اور ڈاکٹر کی جانب سے بار بار احتیاطی تدابیر کی تاکید کے باوجود لوگ فاصلہ قائم نہیں کر رہے۔ کورونا کی موجودگی میں بھی شادی بیاہ کی تقریبات ماضی کے انداز میں کی جا رہی ہیں۔ ایسا ہی واقعہ پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ کے علاقے چاک سرور شہید میں پیش آیا، جہاں محلہ اسلام پورہ میں
में SOPs की धज्जियां बखेरी गईं। शादी के मौके पर बड़ी तादाद में लोगों को जमा किया गया और रक्स सुरूद की महफिल का इनेकाद किया गया। चौक सरवर पुलिस ने समाजी दूरी का नजरिया मुस्तरद करने पर कार्रवाई करके दुल्हा आमिर समेत 8 अफराद को धर लिया, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कायमा कमेटी बराए नज़्म एहतसाब ने बड़ा फैसला करते हुए रुकन पंजाब असेंबली उस्मा कारदार की बुनियादी पार्टी रुकनीत खत्म कर दी है। PTI की कायमा कमेटी बराए नज़्म एहतसाब ने तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए कहा है कि रुकन सूबाई असेंबली उस्मा कारदार को 15 जून को इजहार वजूह का नोटिस दिया गया था, जिसमें उनकी बुनियादी पार्टी रुकनीत 1 माह के लिए मुअत्तल करते हुए उन्हें ज़ेली कमेटी के रूबरू पेश होने की हिदायत की थी। हुक्मनामे में कहा गया है कि उस्मा कारदार के खावंद के अलालत के पेश नजर 17 जून की समाअत मुअख्खर करके 27 जून को मुनक्किद की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर मुमलिकत डॉक्टर आयतुल्लाह दुरानी इंतकाल कर गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी समेत दीगर ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। फातिमा जिन्ना अस्पताल कोयटा के MS ने इंतकाल की तस्दीक करते हुए बताया कि अलालत के बायस वो अस्पताल में जेर इलाज थे। खानदानी जराये के मुताबिक डॉक्टर आयतुल्लाह दुरानी की नमाज जनाजा आज सुबह औरंगाबाद में अदा की जाएगी। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आयतुल्लाह दुरानी के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है और उन्हें पार्टी का वफादार रुकन करार दिया है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए उम्मीद की किरण। मुलाजमतों से जबरी बर्खास्तगी रुकवाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आएं। वजीर आजम आलमी फोरम से खिताब करेंगे। मुअव्विर खुसूसी जुल्फी बुखारी कहते हैं कि सयाहत के फरोग के लिए भी 10 साल की पॉलिसी मुरतब की गई है। वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वजीर आजम इमरान खान को खसूसी इजलास से खिताब की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। वजीर आजम 8 जुलाई को आलमी फोरम से खिताब करेंगे। वफाकी वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने पाकिस्तानी मेहनत कशों की बेरोजगारी का मसला उठाया था। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जुल्फी बुखारी का कहना था कि दुनिया में 10% GDP टूरिज्म पर है। 2020 से 2030 तक पॉलिसी और एक्शन प्लान बनाया। पाकिस्तान ने अपना ब्रांड बना लिया है। रवां साल लॉन्च होगा। दुनिया भर में पाकिस्तान के सियाहती मुकामात को उजागर करेंगे। दुनिया में कुछ 10% उसका एवरेज है GDP पे, पाकिस्तान का 3% भी नहीं है। हमने एक 10 साल का 2020 से 2030 से एक पॉलिसी बना दी है। हमने उसके साथ साथ एक ब्रांड पाकिस्तान बना दी है। मुल्क में PTDC के मोटर्स की बंदिश और मुलाजमीन का नौकरियों से निकाले जाने के हवाले से जुल्फी बुखारी का कहना था कि PTDC को बंद नहीं किया जा रहा, बल्कि इसमें रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं और इसे रीस्ट्रक्चर करेंगे। बरतानिया में 3 माह के लॉकडाउन के बाद तमाम मसाजिद नमाजियों के लिए खोल दी गई हैं। बरतानिया में बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी आ गई। बरतानवी हुकूमत ने मसाजिद में महदूद तादाद के साथ नमाज की इजाजत दे दी है, जबकि नमाज जुमा के बड़े इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक मसाजिद इंतजामिया बुखार की चेकिंग, हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क यकीनी बनाने की पाबंद होगी। इसके अलावा बरतानिया में दीगर इबादतगाहें, रेस्टोरेंट और हुजाम की दुकानें SOPs के तहत खोल दी गई हैं। अब बात करेंगे भारतीय इश्तियाल अंगेजी की। तो भारतीय फौज इश्तियाल अंगेजियों से बाज न आई। लाइन ऑफ कंट्रोल के बटल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके नौजवान को जख्मी कर दिया। खित्ते का अमन तबाह करने की एक और भारतीय कोशिश। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की एक और खिलाफ वर्जी का वाकया सामने आ गया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने बटल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारतीय फौज ने जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के दौरान भारतीय हथियारों और मार्टर गोलों का भी इस्तेमाल किया गया। फायरिंग से 22 साल नौजवान जख्मी हो गया। भारत इश्तियाल अंगेजी के जवाब में धरती माँ के शेर बेटों ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो दुश्मन को सांप सूख गया। भारत की जानिब से पहले भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर सरहदी खिलाफ वर्जी के वाकयात सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान की मुतादिद बार भारतीय सफारतकार को तलब करके एहतजाजी मरासला थमाने के बावजूद फायरिंग और गोलाबारी के वाकयात में कमी नहीं आई। गुज़श्ता माह भी इसी तरह के वाक़े में एक 13 साल लड़की शहीद हुई थी और उसकी माँ और भाई शदीद जख्मी हुए थे। दुश्मन के 5 जंगी तैयारे 1 मिनट में मार गिराने वाले पाकिस्तानी एयरफोर्स के जाहबाज स्क्वाड्रन लीडर MM आलम की आज 50वीं सालगिरह मनाई जाएगी। कौम के हीरो की याद पाकिस्तानियों के दिलों में हमेशा तरोताजा रहेगी।
मोहम्मद महमूद आलम 6 जुलाई 1935 को भारत के शहर कोलकाता में पैदा हुए और 1953 में पाक फिजाइया में शमूलियत इख्तियार की। MM आलम ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1965 की जंग में शुजात और बहादुरी की ऐसी लाजवाल तारीख रकम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। अपनी हवाबाजी के कारनामों से स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने दुश्मन को नाकों चने चिपवा दिए। पाक भारत जंग में सरगोदा के मुहाज पर दुश्मन के तैयारों के साथ डॉग फाइट के दौरान 5 इंडियन हंटर जंगी तैयारे 1 मिनट के अंदर मार गिराए, जिनमें से 4 30 सेकंड के अंदर मार गिराए थे। ये एक आलमी रिकॉर्ड था। इस जंग के दौरान MM आलम ने मजमूई तौर पर दुश्मन के 9 तैयारे मार गिराए और 2 तैयारों को नुकसान पहुंचाया। उनका ये कारनामा पाक फिजाइया की तारीख में एक सुनहरा बाब है, जिसे एक मौजज़ा तस्वुर किया जाता है। जुर्रत और बहादुरी के बायस उन्हें सितारे जुर्रत से नवाजा गया। 1982 में एयर कमोडोर के ओहदे से रिटायर हुए कौम के ये हीरो 18 मार्च 2013 को तवील इलालत के बाद 78 बरस की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुए। मकबूजा कश्मीर में मौलिक वबा का शिकार होकर 2 और कश्मीरी जिंदगी की बाजी हार गए। जान से जाने वालों की तादाद 130 तक पहुंच गई है। वादी में आज भी गैर कानूनी कर्फ्यू बरकरार है। मुजालिम का सिलसिला भी जारी है। माह की जबरी पाबंदी और भारतीय फौज के मजालिम के पे दर पे टूटते पहाड़ मजलूम कश्मीरियों की जिंदगी तो पहले ही जीरन थी, अब मौलिक वबा के हमले भी बड़ी आजमाइश बन चुके हैं। कोरोना से मुतासरा 130 अफराद जान की बाजी हार चुके। आलमी अमूर के माहिरीन की जानिब से अरसा दराज से निशानदही की जा रही है कि नामुसाइद हालात में जिंदगी बसर करने वाले मकबूजा कश्मीर के अवाम पर किसी भी वक्त मौलिक वबा हमला आवर हो सकती है। ऐसी सूरत में जब वादी में न इलाज की सहूलत है और न मुनासिब खुराक मुहैया की जा रही है, कोरोना फैलने से बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। मकबूजा वादी में आज भी खौफ व दहशत का राज है। सड़कें और गलियां छावनी का मंजर पेश कर रही हैं। भारतीय फौज का जब जी चाहे रात की तारीखी में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घरों में घुस जाती हैं। माल असबाब लूट लिया जाता है, नौजवानों को गोलियां मार दी जाती हैं या गिरफ्तार कर लिया जाता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम आखिरी हदों को छू रहे हैं, लेकिन आलमी ज़मीर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए है। शुमाली कैरोलिना में हमलावर की फायरिंग से 12 अफराद जख्मी हो गए। तमाम अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फायरिंग का वाकया शुमाली कैरोलिना के नाइट क्लब में पेश आया। पुलिस के मुताबिक रात 2 बजे लेविश लाउंज में फायरिंग की आवाज सुनाई दी गई, जिस पर पुलिस फोर्स को भेजा गया। हादसे की जगह पर पहुंचने पर मालूम हुआ कि इमारत के अंदर हमलावर मौजूद है। सिक्योरिटी एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके शदीद जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि कुछ लोग प्राइवेट गाड़ियों की मदद से अस्पताल पहुंचे। पुलिस की जानिब से हमलावर की गिरफ्तारी, हलाकत या फरार से मुतल्लिक की तफसीलात नहीं बताई गईं। अमेज़न के सरबराह जेफ बेज़ोस ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। अरबपति शख्सियात के इंडेक्स में अमेज़न के सरबराह जेफ बेज़ोस के असासों की मालियत $172 बिलियन तक पहुंच गई। गुज़िश्ता साल इस वक्त इनकी दौलत में कुछ कमी वाक़ई हुई, जब 25 साल बाद जेफ बेज़ोस और उनकी अहलिया में अलहदगी हो गई थी। उन्हें अमेज़न कंपनी के 4% शेयर्स अहलिया को अलहदगी की सूरत में अदा करने पड़े। मैकेंजी की दौलत ने भी एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मैकेंजी के असासों की मालियत $57 बिलियन तक पहुंच गई है। मैकेंजी का अरबपति शख्सियात की फहरिस्त में 12वां नंबर है। अमेज़न को कोरोना की वबा के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग में जबरदस्त इजाफे से फायदा हुआ, जिससे इनके असासों की मालियत भी बढ़ गई। मौसम गर्मा में मुतादिद मौसमी फल मुयस्सर होते हैं। शहरी गर्मियों के फल खूब पसंद भी करते हैं। ऐसा ही एक फल आलू बुखारा है, जो न सिर्फ जायकेदार है बल्कि सेहत बख्श भी है। शहरी कहते हैं कि आलू बुखारा खाएं और खुद को सेहतमंद बनाएं। आलू बुखारा पोटाशियम, सिलीनियम और दीगर मिनरल्स के साथ विटामिन सी से भरपूर होता है। आलू बुखारे में ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं जो शुगर के मर्ज का शिकार होने से बचाने में मदद देते हैं। ये फल जिस्म में ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करने वाले हार्मोन की सतह भी बढ़ाता है। शहरियों का कहना है हमें आलू बुखारे का इस्तेमाल करना चाहिए, फायदेमंद है। इसका मशरूब भी बहुत ज्यादा मजा करता है। आलू बुखारा जो है ना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मौसमी फल है, अच्छा फल है। अभी स्टार्ट हुआ आना, तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। आलू बुखारा जो है ना वो जिगर मैदे को ठंडा रखता है और गर्मी को आपके जिस्म से दूर करता है। आलू बुखारा अल्लाह ताला की एक बहुत अच्छी नेमत है। दुकानदार कहते हैं आलू बुखारा मौसमी फल है, खरीदार ज्यादा खरीदते हैं। आलू बुखारा बहुत ही अच्छा है, सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है
ज़्यादा तर इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ठंडा होता है, लोग इसको ज़्यादा लेते हैं और ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। खुश्क आलू बुखारे का इस्तेमाल शरीयानों में खून के बहाव में मददगार साबित हो सकता है। दिल को मुख्तलिफ अमराज के अलावा जिस्म को फालिज और दीगर बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। गर्मियों में शहरी जहाँ दीगर मौसमी फलों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर आलू बुखारे के इस्तेमाल को भी मुफीद समझते हैं। कहते हैं कि सेहतमंद जिंदगी के लिए फलों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। कैमरामैन इमरान नकवी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। फिलहाल इतना ही, कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।